امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان ہے۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سٹینڈ بائی پر ہیں۔ پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق براہ راست ایران مذاکرات کی صورت میں جے ڈی وینس کی شمولیت متوقع ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی قیادت سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کر رہے ہیں۔ پیش رفت کی صورت میں جے ڈی وینس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امن معاہدے کے امکانات پر سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکام اور ایرانی قیادت کے درمیان بیک چینل رابطے جاری ہیں۔ جے ڈی وینس زیادہ تر اوقات پردے کے پیچھے رہ کر ثالثوں سے رابطے میں رہے۔ اتوار کی رات جے ڈی وینس پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی رابطے میں رہے۔ پاکستان ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 45 روزہ جنگ بندی کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی پائلٹ کو ریسکیو کرنا تاریخ کا اہم آپریشن تھا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ کل 8 بجے کے بعد پل، انفراسٹرکچر، پاور پلانٹس نہیں بچیں گے۔ Entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. We have to have a deal that's acceptable to me. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision. Largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission. دنیا کو بحران سے بچانے کے لیے معاہدہ اسلام آباد تیار۔ پاکستان نے جنگ بندی فارمولا امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی ہوگی، بدلے میں ایران آبِ ہرمز کھول دے گا۔ دوسرے راؤنڈ میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا تہران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی، صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ایرنا نے بتایا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے مطالبات بھی پیش کر دیے۔ معاشی پابندیوں کا خاتمہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا مطالبہ شامل ہے۔ ایران نے خطے میں جاری تمام تنازعات کا پرامن حل اور آبِ ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں پاکستان عالمی امن کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کے امریکہ اور ایران کی قیادت سے اچھے تعلقات ہیں۔ ARY نیوز کے پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو کرتے ہوئے بولی ساری دنیا امن چاہتی ہے، پاکستان کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رول پلے کر رہا ہے کہ پاکستان نے بالکل درست کیا because it was really the only country had good relations with President Trump and good relations with Iranian leadership. یہ چیلنج بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے، واقعی کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے it will be a major perhaps the biggest achievement Pakistan has ever made. Absolutely, بالکل یہ تو ایک anyways it could be a Nobel case for Pakistan. پوری دنیا چاہتی ہے امن قائم کیا جائے اور یہ جنگ ختم ہو۔ امریکہ کا خیال تھا یا ان کی مس کیلکولیشن تھی کہ 2-3 دن میں ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ That didn't happen. کویت میں علی السالم ایئر بیس پر ایرانی ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ رات کے کویتی ایئر بیس پر کیا گیا جس کے نتیجے میں 15 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ اس حملے کی کویتی حکام کی جانب سے ابھی تک باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔
ईरान की जासिक बंदरगाह पर माहीगीरों की कश्ती पर हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिमाल मगरबी ईरान के शहर तबरेज में धमाके सुनाई दिए हैं। अरबिल में एक घर पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जान से गए। वस्ती ईरान के शहर नजफाबाद में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अस्फहान के काशान हवाई अड्डे पर बमबारी और जुनूब में गोला बारूद के डिपो के करीब धमाके हुए हैं। कर्ज के इलाके गोहर दश्त, कज़वेन शहर और सूबा फारिस के शहर जहरूम में धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के जजीरा कैश में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। सऊदी वजारत दिफा ने दावा किया है कि मशरकी इलाके में दागे गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे के कुछ हिस्से तवानाई तनसीबात के करीब गिरे। मलबा गिरने से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के नाम खत में लिखा, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। उन्होंने लिखा कि 6 अप्रैल को शरीफ यूनिवर्सिटी पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, जिसके नतीजे में इंजीनियरिंग, माहौलियात और दीगर शोबाजात को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल को शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी भी हमले में मुतासर हुई। तालीमी और साइंसी इदारों को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। मुजरिमाना कार्रवाइयां रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं और खत को सलामती काउंसिल की बाज़ाबता दस्तावेज के तौर पर जारी किया जाए। यकीनी बनाया जाए तमाम जिम्मेदारान को आलमी कवानीन के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, जंग तेजी से खत्म होने की सूरत में भी नुकसानदेह होगी। जंग बंद होने के बावजूद महंगाई में इजाफे का बाइस बनेगी। जंग आलमी शरह-ए-नमो को सुस्त करने का बाइस बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग होगी। खलीजी ममालिक की हिमायत से बहरीन ने करारदाद का मुसवदा पेश किया। इब्तदाई सख्त मुसवदा वीटो ख़दशात के बायस नरम कर दिया गया। मुसवदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले और नकलो हरकत में रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा भी शामिल है। करारदाद में आज़ादी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया है। ईरान में मौसीकी के जरिए मज़ाहिमत का मुनफरिद अंदाज, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनोखा एहतजाज किया। ईरानी मौसीकार अली कमसनी ने ईरान के सबसे बड़े बिजली घर दमावन पर पावर प्लांट पर धरना दिया, जिसका मकसद मौसीकी के जरिए हमलों के खिलाफ पैगाम था। उनका ये इक़दाम ट्रंप की पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी के रद्द अमल में सामने आया। मुल्क भर में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार रात 9 बजे तक खुला रहेगा। फैसले का इत्तलाक सिंध में नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई बचत और किफ़ायतशारी से मुतालिक इजलास में फैसला किया गया है कि पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, गिलगित में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी। KP के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे बंद होगी। ये फैसला सूबाई हुकूमत की मुशावरत से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध जल्द फैसले में शामिल होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मैरिज हॉल्स, शादियों की कमर्शियल जगहें भी रात 8 बजे बंद की जाएंगी। रेस्टोरेंट्स, तनूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। निजी प्रॉपर्टीज, घरों पर भी शादी तकरीबात रात 10 बजे के बाद पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। खबर आपको ले लकी मरवत से, जहां पर शहबाज के लड्डा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि धमाके में ASI समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जुबैर मरवत हमारे साथ मौजूद होंगे। जुबैर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जख्मी एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई है। तो लकी मरवत से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर शहबाज खेल अड्डा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। धमाके में ASI समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई है।
खबर आपको नहीं कराची से, जहां पर गुलशन मेमार पुलिस की टेक्निकल बुनियाद पर 2 कार्रवाइयां की गई हैं। डकैती, मज़ाहिमत पर कत्ल और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए नज़ीर। देखिए, गुलशन मेमार पुलिस है जिसने टेक्निकल बुनियादों पर 2 कार्रवाइयां करते हुए दौरान डकैती, मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम और एक स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में कत्ल का मुलजिम मुमताज़ चन्ना गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरी का छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 7 मार्च को नॉर्दर्न बाईपास गुलशन मेमार पर शौकत नामी शख्स अपने दोस्त मियां बख्श जरदारी के साथ था और ये भैंसों का कारोबार करते थे। दोनों गडाब की तरफ जा रहे थे कि 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर सीधी गोलियां चला दी, जिससे मियां बख्श जरदारी मौके पर ही जाबाग, जबकि शौकत जख्मी हो गया था और मुल्ज़िमान ने लूट मार शुरू करके शौकत का मोबाइल फ़ोन और कैश छीन कर फरार हो गए थे। और दूसरी कार्रवाई में स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया आपका। कराची से खबर आपको दें, साइट भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुल्ज़िमान की शनाख्त दाऊद और अरशद के नाम से हुई है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए अफजल। देखिए, साइट भी पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और इन मुल्ज़िमान की शनाख्त दाऊद और अरशद के नामों से हुई है। और SSP सिंघार मलिक का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार की वारदातें करते थे और इनका अब साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। शुक्रिया आपका। कराची में अहम तरीन शाहराहों के बाद तिजारती मराकज़ की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ खान मौजूद हैं उर्दू बाजार में, जहां सरकारी स्कूल और अस्पताल से मुत्तसिल सड़क पर सीवरेज का पानी लाकर मकीन और तलबा के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। मजीद वो बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के अहम तिजारती और कारोबारी मरकज़ में, जो उर्दू बाज़ार के नाम से जाना जाता है। उर्दू बाज़ार का ये वो मुकाम है जहाँ पर एक तरफ सरकारी स्कूल है, उसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल है और उसके सामने यहाँ पर इस वक्त सीवरेज का पानी है जो जमा है। इसके आगे यहाँ पर एक सीवरेज लाइन टूटी हुई थी, जिसकी वजह से जो सीवरेज का पानी है वो स्कूल के सामने भी खड़ा है, साथ ही इसके सरकारी हॉस्पिटल है और इस रोड की जो है वो ये सूरत हाल है। यहाँ पर हर किस्म की कॉपियाँ और किताबें होलसेल कीमत में मिलती हैं। शहर भर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कॉपियाँ, किताबें और दीगर स्टेशनरीज ख़रीदते हैं। तो ये सूरत हाल है। ये उर्दू बाज़ार कराची का अहम तरीन तिजारती और कारोबारी मरकज़ है, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल के सामने ये सूरत हाल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिससे जाती हुई सर्दी लौट आई। मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं बाबर मलिक से। जी बाबर। अजिया वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत मुल्हिका जो नवाई इलाके हैं, जिसमें टेक्सला है, वाह है, काहूटा, कोटली सतिया, मंदरा, जातली, गुजर खान, वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जाती हुई सर्दी ठहर आई, बल्कि जाती हुई सर्दी लौट आई है। काहूटा के इलाके में, कोटली सतिया के इलाके में, साफ तौर पर मरी और गलियात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ पंजाब, जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का ये आलम है कि अप्रैल का ये मौसम है और अप्रैल में सर्दी का गुमाव होता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम सर्द है, बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार है। तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। जी, स्वात के खूबसूरत वादी में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर से सयाह बालाई सवात पहुंच गए। मजीद बताएंगे शहजाद आलम। जी बिल्कुल, स्वात में आज चौथी रोज़ भी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और बाला इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद बालाई स्वात में हर सू सफ़ेदी छा गई और कालाम, महोडन और दीगर पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढक गए हैं, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी और उन्होंने बाला इलाकों मलम जब्बा, कालाम, बहरैन, मदेन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए। स्वात में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही खुशगवार रहेगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट की बादशाह चार्ल्स से पाक में मुलाकात हुई है, जिसमें नासिर भट्ट ने बादशाह को पाकिस्तान आने की दावत दी। इस मौके पर बादशाह ने मुस्तकबिल में मुमकिना दौरे का इंदिया दे दिया।
امریکی خلائی مشن آرٹیمس دوم کا چاند کے مدار سے زمین کی جانب سفر شروع۔ خلائی جہاز کے چاند کے عقبی حصے میں جانے کے باعث 40 منٹ تک زمین سے رابطہ منقطع رہا۔ آرٹیمس دوم زمین سے انتہائی دور جانے والا پہلا انسانی خلائی مشن بن گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چاروں خلابازوں کو ٹیلی فون پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ واپسی پر آپ سے اوول آفس میں آٹوگراف لوں گا۔ That is fantastic. You know, I had a decision to make in my first term. Right. Well, I really look forward to, when we can, I look forward to seeing you in the Oval Office. I'll ask Jared to bring you over and I'll ask for your autograph. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے خون عطیہ کرنے کی مہم۔ امریکی سفارت خانے کے 73 ملازمین نے خون عطیہ کرنے کی مہم میں حصہ لیا۔ 219 ضرورت مند پاکستانی مریضوں کی مدد ہو سکے گی۔ ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے تعاون سے منعقدہ تقریب میں سفارتی عملے کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو کے مطابق امریکہ کے 250ویں جشن آزادی کے موقع پر امریکہ کے صحت کے میدان میں قائدانہ کردار کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ گوگل اپنے موبائل آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ کی نوٹیفیکیشن سسٹم میں اہم اپ گریڈ متعارف کرانے جا رہا ہے۔ نئی اپ ڈیٹس میں نوٹیفیکیشن رولز نامی فیچر شامل کیا جا رہا ہے، جن کا مقصد صارفین کو زیادہ کنٹرول، بہتر ترتیب اور ذاتی نوعیت کا تجربہ فراہم کرنا ہے۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔